today is Saturday. I am Drishti, and today we'll be covering a very important topic. I hope all of you guys have tuned in timely, right? So today we are going to discuss a very serious topic related to your international relations domain of UPSC exams. 25th August marks 5 years of Rohingya exodus. So 5 साल हो गए हैं रोहिंग्यास का जो एथनिक क्लेंजिंग वाला issue it has been going on. It has been impacting the worldwide nations all over, and recently UN chief has issued a statement particularly for Myanmar regarding this whole issue. We are going to discuss this whole topic holistically, and we are going to discuss what has been Rohingya stand, what are Rohingyas, how they have been persecuted, what is the point of view of Myanmar's government, right, previously known as Burma, right, how ASEAN has acted, how the countries worldwide have acted, how US has responded, how India has responded to the whole issue, the refugee policy, the United Nations Convention related to refugees, right, and why India is not a party to UN Convention of Refugees of 1951, where does India stand, and we are going to discuss how refugees, all the refugees should not be seen in a negative light, with a very brimming excellent example that has shown how if you put talent and hard work into right places, you can achieve wonders, right? Let's get started with today's session. So United Nations has been helping out Rohingya refugees for a while now, okay? United Nations Human Rights Commission particularly. So we are going to discuss that, but before that, your session that we have started the initiative Seize the Mains ka, that's Seize the Mains today's question I'm giving you. Please write your answer on this topic and posted it on our website, the link to which you can find it in the description box. From the description box, you write your answer, post your answers on our website. It will be evaluated by a team of experts entirely free of cost, and from there you can analyze where you're lacking right now in your answer writing and how all you can improve your answers, right? Let's get started. The question for today is, describe India's policy with regards to refugees so far. India की policy क्या रही है? Do you think the policy needs to undergo a change to prepare for the future? ठीक है? You have to write this answer in 250 words. Now, Rohingya is just an example. India has been facing refugee problems worldwide. There have been refugee problems all over the world, right? Whether it be Syria, whether it be Afghanistan, jahan pe bhi, whether it be Sudan, jahan pe bhi there have been war-torn countries. Excessive bloodshed has been happening. There you can find the problem of refugees, and the basic problems are same: poverty, hunger, hygiene issues, literacy, excessive hunger and poverty, malnutrition, and the underlying issues that follow: parallel black economies, basic problem of survival, religion-based issues, region-based issues, linguistic-based issues, persecutions. There are n number of social issues that will follow. So this particular topic will help you write better answers, not just in your GS but also your essay, and if you have a humanities related optional, for example sociology, philosophy, so it is going to help you there as well. I hope you guys frame a very good answer. So this is your question. We are going to discuss a couple of things that will help you in framing and answers. So let's hope for a very interesting conversation ahead, right? Now let's see. Sabse pehle I'll tell you, World Refugee Day is celebrated on 20th June of every year. It is dedicated to the survival, the zeal of persistence that these strong people have to follow just to save themselves, to save their children. They have to leave everything behind and uproot themselves and settle into some other country altogether, just so that their basic needs of living could be met, right? So World Refugee Day is celebrated on 20th of June. Now एक बार timeline देखते हैं.
पहले why this was in news, so as I told you 25th August marks 25th August, it marks 5 years of Rohingya exodus, 5 years of exodus. Kofi Annan quoted it as a textbook example of ethnic cleansing, right? It was a very strong statement coming from UN. So that particular years it was quoted in your exams as well. You can also use this while writing your mains answers. Okay, so wherever you have to use quotes, you can quote this particular example as well, right? एक बार timeline देखते हैं how it all started, who are Rohingyas, and उसके बाद we'll proceed further. Now, this are the basic pictures that were caught by the photographers all over, particularly UNHCR. This is the dire condition. Usually, refugees are portrayed as someone who are there in a negative limelight, but these people have suffered masses of atrocities, and our basic instincts towards them should be of empathy, right? India does not have a refugee policy. क्यों नहीं है वो भी हम discuss करेंगे, but for now let's stick to this. Now what happened was, it all started, it has all been going on for a very long time. जब म्यांमार में राखाइन स्टेट से पहले होता था आरकान स्टेट, ठीक है. सो 15th सेंचुरी से पहले से ये इशू चला आ रहा है, बट रिसेंटली जो एक वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे इट केम टू लाइमलाइट व्हेन इट हैपेंड वाज ऑन 25th August of 2017 व्हेन एन आर्म्ड रोहिंग्या ग्रुप कॉल्ड अराकान रोहिंग्या Salvation Army, also known as ARSA, ठीक है. ARSA, they attacked dozens of police posts in Myanmar, Rakhine state. Officers were killed. उसके बाद ऑफिसर्स, मिलिट्री, द जनता रजीम, म्यांमार का अगर आप गवर्नमेंट का पूरा सिनारियो देखो, इट हैज़ बिन वेरी अनस्टेबल. मोस्ट ऑफ इट मिलिट्री हैज़ रूल्ड, बट पिछले टाइम में आंग सांग सू की, व्हेन शी केम, डेमोक्रेसी वाज एस्टैब्लिश्ड. शी वाज आल्सो गिवन अ नोबेल पीस. म्यांमार की हिस्ट्री, आई होप यू गाइज हैव स्टडीड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. नाउ September 5th 2017 को दे रिटालिएटेड and there was a lot of violence, जिसकी वजह से रोहिंग्यास दे हैड टू गो बैक टू बांग्लादेश, राइट. नाउ September 19 2017 को क्या हुआ, पोस्ट योर इंटरनेशनल आउटक्राई, जितना इंटरनेशनल लेवल पे इसके बारे में चर्चा हुई, उसके बाद नोबल लॉरिएट जो वहाँ की हेड ऑफ द स्टेट थी, आंग सांग सू की, शी एक्चुअली इशूड अ स्टेटमेंट एंड शी सेड Myanmar will stop persecuting Rohingyas and we will do something about it. Now November 23 2017 को Bangladesh and Myanmar they agreed to start repatriating refugees, ठीक है, जो भी उनके बीच में refugee crisis है, because Myanmar से when Rohingyas were exiled, not exiled, they started fleeing, so they started settling in various boundary neighboring countries, and the closest one was Cox's Bazar. Cox's Bazar is in Bangladesh, ठीक है. Because they identify with the religion, they identify with the language, so their first choice was Bangladesh. But Bangladesh itself is very highly populated and they have the issues of their own. So Bangladesh was not willing to take the burden of refugee, particularly the economic burden, for a very long time. So Bangladesh and Myanmar, they agreed कि we will start repatriating refugees. Now December 5th 2017 को UN Human Rights Chief जो थे, Zayed Rad Al Hussein, he pointed it out that genocide हुआ है, and he asked for an internal investigation to happen. Now August 25 2018 को again they celebrated the first anniversary of Rohingya exodus, right. Protests, they emerged and it was staged. Everything followed. There were a lot of comments by a lot of world leaders. Now September 3 2018 को two Reuters journalists who were working particularly on a story about Rohingya, they asked Aung San Suu Kyi about what is her stand on the whole crisis, and she said the Myanmar government has nothing to do with. She sort of separated herself with the whole thing that has been happening, and which was condemned all over the world. Now November 2017, Bangladesh and Myanmar again they started talking about
the repatriation, but despite the efforts, Rohingyas, they refused to leave Bangladesh and go back to Rakhine because they were worried about their safety. Now 2016 May, July May, sanctions were announced against Myanmar's army chief and 3 more officers by US, right? So US started condemning the actions because US में भी ना couple of things were happening उस time पे, the next elections were bound to happen, so there were a lot of politically motivated statements that were made, but all in all US condemned the action. Now August 22, 2019 की अगर बात करें, so again efforts were made to bring back Rohingyas to Myanmar, but again they sort of refused because they found the situations, the conditions to be better in other countries. Now November 11, 2019 को Gambia is a African nation. They accused Myanmar of genocide, which resulted in the filing of a lawsuit in International Court of Justice, ICJ. Acha, I hope you guys know the basic difference between ICJ and ICC, International Court of Justice and International Criminal Court. अगर नहीं पता है तो please एक बार do read the differences between them. ठीक है? Now the Hague-based International Criminal Court, ICC, they approved the full investigation into the prosecution of Rohingyas, and later on universal jurisdiction आया इसके ऊपर, which was filed by the activist right groups that were present in Argentina. ठीक है? Now December 11, 2019 को Aung San Suu Kyi, he led Myanmar's defense, while Gambia said कि the Rohingyas have been tortured to death in Rakhine state. Now ICJ finally ordered Myanmar to take urgent steps to prevent जो भी alleged genocide चल रहा है and reported back to the ICJ in 4 months. February 1 अगर हम 2021 की बात करें तो म्यांमार की जो civilian government है, the democratic government, it was again removed by military and again जनता regime is established. March 21, 2022 को US officially declares that what Rohingya suffered was a genocide, and there was an official evidence that has been found where Rohingyas were simultaneously destroyed. Now July 22, 2022 ICJ it ruled that the case filed by Gambia can now proceed, and 10th August की अगर बात करें recently तो 2 Rohingya leaders, they were shot dead in the Bangladesh's refugee camp. So आप ये देखो, ये पूरा मैटर ठंडा होने में आ ही नहीं रहा है. There are developments, continuous developments that have been happening. Meanwhile Rohingyas के state में, उनके बच्चे के state में बड़े हो रहे हैं. No one has actually cared. They are living in extreme conditions, poor conditions, and even in India the Rohingya population, you can find it not just in West Bengal but it has spread from Kashmir to Tamil Nadu. So the whole of this scenario is becoming a problem for not just for India but for the countries worldwide. Now आप देखो मेजर जो सेंटर्स रहे हैं रोहिंग्यास के, वेयर रोहिंग्यास हैव फ्लीड टू. ठीक है, दिस डेटा इज ऑफिशियली फ्रॉम UNHCR. सो इट ऑल स्टार्टेड हेयर, इस पर्टिकुलर एरिया रैखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार. नाउ इस एरिया की 1/3 पॉपुलेशन was Rohingya. From here they have fled to Thailand, Malaysia, Indonesia. This is Myanmar where they originally belong to. Bangladesh, India, Pakistan, UAE and Saudi. And ये जहाँ पे भी गए हैं इनको फर्स्ट ग्रेड सिटीजन्स जैसी जो अमेनिटीज़ हैं वो नहीं मिल रही हैं. दे आर स्टिल लीडिंग अ वेरी डिफिकल्ट लाइव्स. दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ इट, राइट? सो जस्ट सी दिस मैप. दिस वॉज टेकन, दिस ऑफिशियल डेटा इज फ्रॉम 2017 फ्रॉम UNHCR. अभी तक एक अपडेटेड वर्जन नहीं आया है ऑफ द डेटा. वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू कम आउट सून, बट दिस इज द मेजर डेटा. यू कैन सी कितने कितने रोहिंग्यास आर फाउंड इन, and there is a pattern to it. If you see, Rohingyas themselves are preferring to go to Islamic states, right? Just because they have this mindset,
maybe there we will be safe. ठीक है, that whole religion security thing that we study in the thinkers part, so they have that in mind and they cannot be blamed. Myanmar being a Buddhist nation, there they have faced the persecutions for the reasons whatsoever, but them feeling that we might be more safer in the Islamic states, they have chosen those states to settle in, right? These are the couple of states, but Rohingyas right now they are being found all over the world, right? But majority Rohingyas in countries में रह रहे हैं. Now, there are not just Rohingyas, but there are n number of ethnic groups in Myanmar. देखते हैं क्या क्या है, ठीक है? So this is your Myanmar. ये इंडिया का बाउंड्री लगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है? Now this is your Bangladesh. Bangladesh and West Bengal से लगा. Now here are the regions, color depiction दिखाई हुई है, यहाँ पे ethnic groups हैं. So Myanmar officially it recognizes 135 ethnic groups and Rohingyas they have been rendered stateless. Now ethnic groups कौन कौन से हैं? There are Bamars, Shan, Karen, Rakhine, Rohingya, Kachin, Chin, Karneni, Mon, Wa and Kokang Chinese. ठीक है, there are n number of other ethnic minorities as well, but these are the major ones and the important ones which are continuously in news for some reasons altogether, right? Now basically अगर हम देखें what are Rohingyas, Rohingyas को identify कैसे करते हैं, how are they separated from the rest of the community? So Rohingya basically they settled in that particular region of Arakan state in 15th century या उससे भी पहले, ठीक है? Originally it is said कि ये वहाँ के residents थे. Now Rohingyas, if you consider them, they are ethnic Muslim minority. They basically practiced Sunni influenced variation of Sufi influenced variation of Sunni Islam, ठीक है? Sufism आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा, देयर वाज अ होल सूफी मूवमेंट, ठीक है? देयर हैव बीन वेरियस इस्लामिक मूवमेंट्स, उसके अंदर सूफी मूवमेंट भी आती है, ठीक है? सो दैट हैव बीन स्टडीड. नाउ इफ यू टॉक अबाउट रोहिंग्यास, तो दे आर इंडिजीनियस टू रखाइन स्टेट एंड दे रखाइन स्टेट वाज आल्सो नोन एज अराकान. मैं आपको आगे मैप में दिखा दूंगी अराकान स्टेट कहाँ है. नाउ दे हैव सेटल्ड here since 15th century. Basically Britishers they brought them as labor, bonded labor, ठीक है? Now they basically अगर आप race की बात करो तो they identify themselves as Muslim Indo-Aryans which are a mixture of colonial and colonial immigrations. Now Myanmar government का अगर आप official stand देखो तो it is they see Rohingyas as illegal immigrants to Rakhine state who have migrated to Rakhine state following the independence of Bangladesh after the separation war, ठीक है? तो they do not consider Rohingyas to be a citizens of Myanmar. Now before August 2017 की अगर हम बात करें तो majority of estimated जो थी Rohingyas की in Myanmar that was around 1 million, ठीक है? Which made around their population का पूरा ratio to be 1/3 of the population. Now how they differ from Myanmar's dominant Buddhist group. They differ how ethnically they are different, linguistically they are different, ठीक है? बांग्लादेशी टच आता है, बंगाली टच है इनमें, and also the religion का तो difference है ही है, ठीक है? Now Rohingyas they trace their origin basically in the region of 15th century when Muslim came to form the former Arakan kingdom. So Arakan kingdom आप देखो, ये आपका रखाइन स्टेट का मैप है and here is your Arakan state, ठीक है? अलग अलग रीजन्स हैं, ये चिन स्टेट है, ठीक है? चिन एथनिक ग्रुप अलग है. अच्छा, नॉट जस्ट यहाँ पे रोहिंग्या का इशू चल रहा है, चिन्स का भी इशू चल रहा है. एवरीवन हैज बीन फाइटिंग विद एवरीवन बिकॉज सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन. सबको वो पर्टिकुलर एरिया चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ हमारे लोग रहेंगे. इट इज एक्चुअली द मैटर ऑफ आइडेंटिटी. दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज पूरा ग्रुप, कम्युनिटी एज अ होल. ये वहाँ से इशू बर्ड होता है. ऑल्सो देर आर इकोनॉमिकल इशूज, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, सबकी चीज़ें हैं. बट सिर्फ लड़ाई रोहिंग्यास की नहीं चल रही है. जो मैंने आपको 135 मेजर एथनिक ग्रुप्स दिखाए सब आपस में लड़ रहे हैं फॉर रीजन्स ऑल टुगेदर, डिफरेंट ऑल टुगेदर, राइट? Now many others they simultaneously arrived during 19th century and early 20th centuries, but
जो रैखाइन का एरिया था दैट वाज गवर्न्ड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है, एंड दे रूल्ड इट एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बाद में बर्मा सेपरेट हुआ, बांग्लादेश सेपरेट हुआ, बट अगेन सारे फसाद की जड़ कहाँ से शुरू हुई? ब्रिटिशर्स ने आके रूल करना शुरू कर दिया। जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बाउंड्रीज थी दे ब्रोक देम, एंड व्हेन दे लेफ्ट इन हरी एंड अब्रप्टली, एंड वहां के लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया, जिसका खामियाजा वर्ल्ड आज तक भुगत रहा है। आप उसको कुछ भी ले लीजिए, कहीं पे भी आप देख लीजिए, अफगानिस्तान का इशू देख लीजिए, ठीक है, इफ यू सी इंडिया पाकिस्तान इशू, ठीक है, बाउंड्री लाइन प्रॉपर नहीं करी गई, देन सिमिलर केसेस विद इंडिया चाइना। नाउ इवन इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया, यही इशू निकल के आ रहा है। नाउ सिंस इंडिपेंडेंस की आप बात करो 1948 में सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इन बर्मा, म्यांमार एंड since 1989 they have refuted जो claim है रोहिंग्यास का historical, and they have had the official stand कि these are illegal immigrants. Now रोहिंग्यास को illegal immigrants आपने consider कर तो दिया, but they have traced their roots, ancient roots in Myanmar itself. Now basically they are victims of an organized genocide. Genocide किसी भी reason से हुआ, and all over the world they are considered to be one of the most prosecuted minorities. जो crisis है it received international attention basically ये 2012 के बाद से, as I told you this year marks 5th anniversary of Rohingya exodus. Now अगर आप रोहिंग्यास की इशू की बात करो तो ये होना लाइमलाइट में आना कब से शुरू हुआ? इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी स्टार्टेड रिपोर्टिंग इट सिंस 1970, ठीक है, 1970 से अगर हम बात करें तो देयर हैव बीन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ म्यांमार्स गवर्नमेंट and they have compelled hundreds of Rohingya Muslims to flee. Most have crossed to Bangladesh, लेकिन मैंने आपको मैप में segregation दिखा दिया ना, कहाँ कहाँ कितने कितने लोग आके settle हुए हैं. So now they have settled to Indonesia, Malaysia, Thailand, India, etc. etc. Right? So अगर आप मैप देखो how Myanmar has expelled the majority of its Rohingya to Bangladesh, ये मैप आपको PDF में मिल जाएगा just after the lecture. So this is the timeline that has followed. अगस्त 2016 से अक्टूबर देन दिसंबर एंड सिमिलरली ये पूरा फॉलो होता है आपका अक्टूबर 2017 से. एक पूरे साल का ये आपको दिखाता है हाउ मेनी पीपल हैव फ्लीड एंड हाउ मेनी पीपल हैव डाइड. ठीक है, सो ये पूरा मैप अगर आप देखो, दिस इज अगेन ऑफिशियल डेटा जो लिया गया है, दिस इज फ्रॉम UNHCR एंड यू कैन मेक आउट हाउ डायर इज द कंडीशन. एंड ये सिर्फ 2017 तक का डेटा है. ठीक है, वी आर वेटिंग ऑन द रीसेंट डेटा, जैसे ही आ जाएगा विल अपडेट यू. बट अगर आप सिर्फ तभी का डेटा भी देखो, यू कैन सी कितनी प्रॉब्लम्स इन लोगों ने फेस करी है. नाउ अगर हम लीगल स्टेटस की बात करें रोहिंग्यास की, एज आई टोल्ड यू, जो म्यांमार की गवर्नमेंट है वो इनको सिटीजनशिप का स्टेटस तो देती नहीं है. ठीक है, एंड इसकी वजह से जितने भी रोहिंग्या पीपल हैं, दे डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कि वेयर डू दे बिलोंग टू. नाउ म्यांमार का जो 1948 का सिटीजनशिप लॉ है ये ऑलरेडी एक्सक्लूजनरी है, एंड जो वहाँ की मिलिट्री जनता गवर्नमेंट है, ठीक है, मिलिट्री गवर्नमेंट है जिन्होंने पावर सीज कर ली है सिंस 1962. अभी रिसेंटली डेमोक्रेसी केम इनटू प्लेस व्हेन ऑन्ग सांग सू की बिकेम द स्टेट हेड, लेकिन द कंडीशंस रिमेन सेम. उसके बाद भी द मिलिट्री टुक ओवर. नाउ अनदर 20 ईयर्स के बाद रोहिंग्या एक्सेस जो रहा है वो बहुत खराब रहा है एंड उनकी कंडीशन बद से बदतर होती चली गई है. नाउ रिसेंटली व्हाट हैपेंड, रोहिंग्यास दे वर एबल टू रजिस्टर एज टेम्पररी सिटीजन्स विद आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, जिनको बोला जाता था पर्टिकुलरली व्हाइट कार्ड्स. ठीक है, इनको एक टेम्पररी कार्ड इशू कर दिया गया था जिसको बोला जाता था व्हाइट कार्ड्स. जो मुस्लिम जनता है उसको वहां की मिलिट्री गवर्नमेंट ने इशू करना शुरू करा. नाउ व्हाइट कार्ड्स जो थे दे गेव देम लिमिटेड राइट्स देते थे, बट इसको फिर भी एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं लिया जाता था. ठीक है, नाउ इन 2014 की बात करो आप, तो गवर्नमेंट इट हेल्ड बैक अ UN बैक्ड, ठीक है, UN बैक्ड नेशनल सेंसस पहली बार हुआ ये 30 सालों में. नाउ मुस्लिम माइनॉरिटी जो थी आपकी, देवर इनिशियली परमिटेड कि ये आइडेंटिफाई करे अपने आप को एज रोहिंग्यास, बट जो वहाँ के नेशनलिस्ट थे, बहुत स्ट्रॉन्ग विंग राइटिस्ट थे, उन्होंने दे थ्रेटन द गवर्नमेंट एंड अल्टीमेटली ये सिर्फ रजिस्टर कर पाए अपने आप को एज बंगालीज. ठीक है, दे डिड नॉट अलाउ देम टू रजिस्टर एज अ
community. Now similarly under pressure from Buddhist nationalist, ठीक है, म्यांमार being जो मेजर पॉपुलेशन है वहाँ की, मेजॉरिटी बीइंग बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, सिमिलरली अंडर प्रेशर फ्रॉम बुद्धिस्ट नेशनलिस्ट, रोहिंग्याज राइट टू वोट इन 2015, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम होना था बट इट वाज कैंसल्ड, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड करती गई बट अल्टीमेटली कुछ फ्रूटफुल हुआ नहीं. 2015 के इलेक्शंस आए बट यहाँ पे जो मॉनिटरिंग करी जानी थी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के थ्रू करी जानी थी बट पार्लियामेंट्री कैंडिडेट का फेथ यहाँ पे डिमीन हो गया, ठीक है. तो चीज़ें यहाँ पे कुछ भी मटीरियलाइज हो नहीं पाई. मैं आपको डिटेल्ड मैप दिखा देती हूँ एक क्या है. सो ये है आपका म्यांमार, ये है आपका रैखाइन स्टेट, ठीक है, ये है आपका रैखाइन स्टेट, दिस इज योर बांग्लादेश. अब ये यहाँ से फ्ली करके गए बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में, ठीक है, एंड अल्टीमेटली बहुत सारा पोर्शन इनका यहाँ से आके इंडिया में भी आ गया, ठीक है. ईदर दे डायरेक्टली केम टू इंडिया, बहुत सारे देयर आर पोरस बॉर्डर्स, ठीक है, ईदर दे डायरेक्टली केम टू इंडिया या फिर बांग्लादेश के थ्रू होते होते ये पहुंच गए वहां. नाउ अगर आप देखो आरसा का जो रिबेलियस ग्रुप है उसका इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है. नाउ प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई बट अगर हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देखें व्हाट इज एक्चुअली बीइंग डन टू हैंडल द रिफ्यूजी क्राइसिस, तो नवंबर 2015 में म्यांमार की जो पहली सिविलियन गवर्नमेंट है विच वाज लेड बाय नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD पार्टी, ये पहले बात करने के बारे में भी हेजिडेंट थे, दे डिडंट वांट टू टॉक अबाउट रोहिंग्या क्राइसिस. उसके बाद जब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग वाज दे आइडेंटिफाई अ आइलैंड जिसको बोलते हैं हम चारपिया आइलैंड या भाषणचार आइलैंड, ठीक है. भाषणचार आइलैंड इन्होंने चूज करा. इट इज एक्चुअली अ आइलैंड हेयर मेघना रिवर के पास एंड दिस आइलैंड इज बेसिकली situated on the estuary of मेघना river. Now अगर आप इस रीजन से हो you must be knowing, अगर आप इस रीजन से नहीं भी आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, बारिश में क्या होता है, पानी बढ़ जाता है, हर नदी में बारिश में पानी बढ़ता है एंड अल्टीमेटली आपके जो ओशंस होते हैं उनमें पानी बहुत ज़्यादा आता है. नाउ मेघना रिवर की एस्चुरी पे ये आइलैंड लोकेटेड है, तो क्या होगा, म्यांमार की गवर्नमेंट कह रही है कि इनको यहाँ रख देते हैं, जब बारिश आएगी तब क्या होगा, आप यू एक्चुअली आर पुटिंग इतने सारे लोगों को ये पुटिंग देयर लाइव्स एट रिस्क बिकॉज ये पूरा आइलैंड डूब जाता है, तो आप एक्चुअली उनको एक तरह से प्रोसिक्यूट कर रहे हो, ठीक है. मीनवाइल जब तक पब्लिक देख रही है, दुनिया देख रही है, आपने उनको यू हैव प्रोवाइडेड देम विद अ प्लेस टू स्टे बट एज सून एज द मॉनसून्स विल हिट दे विल डाई. सो दिस इज द सोल्यूशन दे केम अप विद फॉर द टाइम बीइंग एंड इसकी कोई कंक्रीट एक प्लान नहीं बनाया गया था कि मीनवाइल वी आर सेटिंग अप देयर, उसके बाद इनको मूव कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं था. सो इट वाज कंडेम्ड वर्ल्ड वाइड, ठीक है. सो देयर वर अ लॉट ऑफ एरियाज दैट वर अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम बट इसका कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आया. तो the whole point of भाषणचार आइलैंड, चारपिया आइलैंड was dropped. Now UN का रिस्पॉन्स देखें अगर इस पूरे इशू में, सो इन 2016 अगस्त 2016 UN ने एस्टैब्लिश करी एक 9% कमीशन विच वॉज लेड बाय कोफी अन्नान. कोफी अन्नान ने डिस्कस करे प्रॉब्लम्स एंड दे होप टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट. कमिटी ने अपनी पहली रिपोर्ट सबमिट करी म्यांमार गवर्नमेंट को ऑन अगस्त 23, 2017. नाउ कमेटी की जो फाइनल रिपोर्ट थी उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे कम्युनल टेंशन है, जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको बैठ के आराम से सॉल्व करा जाए, उनको रिजॉर्ट करा जाए. जब तक आप कम्युनल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे रोहिंग्या इशू सॉल्व नहीं होगा, ठीक है. दिस इज व्हाट द कमिटी सेड. बट अगेन जो म्यांमार में अपना एक मिलिट्री रेजीम चल रहा है वो बहुत डिफिकल्ट है. डेमोक्रेसी से लेके जब देखो वहाँ पे पावर ग्रैब की सिचुएशन चल रही है एंड देयर हैव बिन अदर एथनिक क्लैशेस एज वेल. तो म्यांमार गवर्नमेंट किसी कंक्रीट सोल्यूशन पे आ नहीं पाई. अगर हम आसियान के रिस्पॉन्स की बात करें, आसियान हैज बिन a very strong group which has emerged in this particular region. Now ASEAN का भी there was no coordinated response to Rohingya problem. Now divided responses आए हैं. Even इंडिया ने ना ओपनली इसको ना क्रिटिसाइज करा है, ना इंडिया ने ये कहा है कि वी विल प्रोवाइड शेल्टर टू रोहिंग्यास बिकॉज इंडिया की अपनी प्रॉब्लम है. हम आसियान को क्या बोले, बट आसियान के अपने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं,
नाउ इंडो वियतनामीज जो वॉर हुआ था, जो चाइनीज वियतनामीज वॉर हुआ था, उसके बाद जो इंडो चाइनीज आपके रेफ्यूजीज थे उनके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया गया था कि ऐसे ऐसे उनको सेटल करेंगे, बट इन केस ऑफ रोहिंग्यास वो भी नहीं बन पाया है। नाउ प्रेशर आसियान का भी नहीं है ऑन म्यांमार। नाउ 1819 में, एज आई टोल्ड यू, देयर वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन फॉर इंडो चाइनीज रेफ्यूजीज, जिसमें अराउंड काफ़ी सारे, द फिगर इज गिवन इन द PDF। नाउ वहाँ पे वियतनामीज रेफ्यूजीज जो थे उनका कोई एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ, एंड फोर्थ लार्जेस्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार इसको डिक्लेयर कर दिया गया। नाउ फर्स्ट मलेशिया जो था, दे रिफ्यूज टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ रेफ्यूज टू पीपल, पर धीरे धीरे मलेशिया एंड इंडोनेशिया बोथ ऑफ देम दे अग्रीड कि टेम्पररी रेफ्यूज दे देंगे हम, जस्ट बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। इंडिया हैज सॉर्ट ऑफ स्टेड अवे फ्रॉम दिस होल फियास्को, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है रेफ्यूजीज पे कोई भी। इंडिया ने रोहिंग्यास को ये नहीं बोला है कि हम उनको शरण देंगे, ठीक है। रोहिंग्या शरणार्थी हमारे यहाँ रह सकते हैं, इंडिया हैज नॉट गिवन दैट स्टैंड, बट ऐसा भी नहीं है कि रोहिंग्यास जो आए हैं इंडिया ने उनको परसिक्यूट करा है या उनको निकाल दिया है, ठीक है। इट्स अ ग्रे एरिया एंड इंडिया हैज स्टेड इन दैट ग्रे एरिया। उसके रीजंस हैं इंडिया के अपने पास, बिकॉज इंडिया हैज ऑलरेडी फेस्ड ये सारे इश्यूज पहले। जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ था, अ लॉट ऑफ बांग्लादेशी रेफ्यूजीज दे केम एंड दे सेटल्ड इन इंडियाज बॉर्डर। इंडिया के ऊपर अपना इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसकी वजह से, प्लस देयर इज ऑलवेज सिक्योरिटी इशू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इसलिए इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड है नहीं। नाउ इंडिया पहला स्टैंड, ऑफिशियल स्टैंड इंडिया इसको क्या बोलता है, इंडिया कंसिडर करता है दिस इज टू बी अ इंटरनल अफेयर ऑफ म्यांमार, ठीक है। नाउ इफ इंडिया बिलीव्स आसियान की अनडिनाइबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द होल क्राइसिस, एंड जब आसियान कुछ नहीं कह रहा है तो इंडिया कौन होता है कुछ बोलने वाला, ठीक है। नाउ इंडिया ने कंडेम तो करा है, जो भी वहां पे प्रोसिक्यूशन हो रहा है इंडिया ने उसको कंडेम करा है, बट इतना ही कमेंट है इंडिया का, इंडिया हैज बीन यूजिंग इट्स वर्ड्स वेरी केयरफुली इन दिस होल सिनेरियो। नाउ इंडिया डज नॉट वांट कि कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट जो हैं न्यू रजीम के, म्यांमार के, वो कहीं से भी इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट में आए, बिकॉज इंडिया हैज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन म्यांमार। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड इस टाइम टू मेक एन एनिमी आउट ऑफ म्यांमार, बिकॉज वहाँ से हमारा चाइना एंगल भी वर्क करता है। नाउ इंडिया हैज ऑलरेडी सेवरल इश्यूज अपने, जैसे कि पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एंड इंडिया पहले अपने इश्यूज से डील कर ले, इतना ही बहुत है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने कैसे रिस्पॉन्ड करा है, नवंबर 19 में 2019 में Gambia on the behalf of 57 nation organization of Islamic cooperation, again you see the Islamic card has come into play again, ठीक है। As I told you, it's always about unity where you find safety. So Gambia ने as a लीडर ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इसको फाइल करा पहला इंटरनेशनल लॉसूट अगेंस्ट म्यांमार इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक्यूजिंग कि म्यांमार ने वायलेट करे हैं जो UN की गाइडलाइंस हैं ऑफ जेनोसाइड कन्वेंशन, ठीक है। कोर्ट ने जनवरी 2020 में म्यांमार को कहा कि म्यांमार मस्ट टेक इमरजेंसी मेजर टू प्रोटेक्ट रोहिंग्या एक्सोडस, रोहिंग्या जेनोसाइड, एंड फाइनल रूलिंग आई ICC की, ICC ऑथराइज्ड, जिसमें नवंबर 2019 में देयर वाज अ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर्ड रिगार्डिंग अट्रोसिटीज इन म्यांमार। नाउ इंडिया की रिफ्यूजी पॉलिसी की हम बात करें, इंडिया डज नॉट हैव अ रिफ्यूजी पॉलिसी। इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू 1951 UN रिफ्यूजी कन्वेंशन एंड इट्स 1967 प्रोटोकॉल, नॉर डज इट हैव अ डोमेस्टिक रिफ्यूजी लॉ। प्लीज ध्यान रखेंगे, इंडिया इज नॉट पार्टी टू इट। इंडिया हैज लार्जली स्टक इन प्रैक्टिस टू प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट। अच्छा, नॉन रिफाउलमेंट का अपना एक अलग कंसेप्ट है, इट्स अ ग्रे एरिया, जैसे मैंने आपको बताया। इट एक्चुअली गिव्स इंडिया थोड़ी सी पावर टू एक्सरसाइज द प्रोटेक्शन, ऑल्सो to keep its internal security in check. This is the area, not just India, there are n number of other countries as well who have chosen not to be a party to this convention. ठीक है, now रिफ्यूजी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए UN ने अडॉप्ट करा ये पूरा कन्वेंशन आपका, ठीक है, एक्सक्यूज मी,
यूएन अडॉप्टेड कन्वेंशन ऑन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी, जिसको हम बोलते हैं रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951। नाउ इसको फॉलो करा गया रिफ्यूजी प्रोटोकॉल 1967 के द्वारा, बट इंडिया ने इसको साइन नहीं करा गया। अच्छा, अब अगर हम रिफाउलमेंट की बात करें, द ग्रे एरिया वेयर इंडिया लाइक्स टू स्टे, नॉन रिफाउलमेंट का जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट जो है, इफ यू हैव साइंड द ट्रीटी, जो कन्वेंशन है पूरा, अगर आपने वो साइन कर दिया, इफ यू आर अ पार्टी टू इट, आप अंडर एनी सर्कमस्टांसेस जो रिफ्यूजी आपके यहाँ रह रहे हैं उनको वापस जो जहाँ से वो भाग के आए हैं वहाँ पे नहीं भेजोगे, बिकॉज इट पोजेज अ थ्रेट टू देयर सेफ्टी, सिक्योरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप उनको वहाँ से अपने देश से नहीं निकाल सकते हो इन एनी केस, ठीक है। सो सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ओपिनियन में देखो तो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एंड दिस इंडिया चोज टू फॉलो। नाउ प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट जो है, दिस हैज बीन कोडिफाइड अंडर आर्टिकल 33 ऑफ रिफ्यूजी कन्वेंशन एंड रीजनल रिफ्यूजी जो आपके लॉ इंस्ट्रूमेंट्स है। एक्सेप्शन टू नॉन रिफाउलमेंट कहाँ आता है? एक्सेप्शन टू नॉन रिफाउलमेंट सिर्फ यहाँ आता है कि जहाँ से वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या पर्टिकुलर पर्सन भाग के आया है, that person actually poses a threat to your country, your national security, and वो आपकी कंट्री में आके भी न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज द ओनली एक्सेप्शन टू नॉन रिफाउलमेंट, सो दिस इज वाई इंडिया हैज नॉट साइंड इट। नाउ ओवर द पास्ट डिकेड्स की अगर हम बात करें तो ये जो प्रिंसिपल है ये ह्यूमन राइट ट्रीटीज में भी इंक्लूड करा गया है, जैसे कि कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, inhuman or degrading treatment punishment which comes under article 3. Then there is international convention for protection of all persons from enforced disappearance which comes under article 16. ठीक है। now non refoulement की अगर हम बात करें, as I told you it comes under article 33 of 1951 convention, तो जितनी भी state parties हैं they actually have to adhere to it. now इंडिया की refugee policy की बात करें तो इंडिया के पास रिफ्यूजी पॉलिसी के नाम पे क्या है? वी हैव द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। बेसिकली इट फेल्स टू एड्रेस जो पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स है इस पूरी क्लास की, एंड ये देता है एक अनब्रिडल्ड पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिपोर्ट एनी फॉरेन सिटीजन्स। फर्दर अगर हम बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की 2019 की, तो ये स्ट्राइकिंगली एक्सक्लूड करता है CAA किसको? मुस्लिम्स को, ठीक है, फ्रॉम जो प्रोवाइडेड है, बल्कि इट प्रोवाइड सिटीजनशिप टू हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख, जैन्स, पारसीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा फ्रॉम अफगानिस्तान। ये CAA का इशू है, दिस हैज बीन अ बर्निंग टॉपिक इन द कंट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मोर ओवर इंडिया की बात करो तो इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग अ पार्टी टू 1951 प्रोटोकॉल, ठीक है, इंडिया हैज हैड अ स्टेलर रिकॉर्ड। आई टोल्ड यू इंडिया ने वो साइन नहीं करा है बाय चॉइस, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे आपके रूलिंग्स हैं जो आपको मानने पड़ेंगे, जिसकी वजह से इंडिया के लिए ना वो बाइंडिंगली फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप रिफ्यूजी का इंडिया का स्टेटस देखो, एवर सिंस अगर आप बांग्लादेश के वॉर के टाइम से देखो तो इंडिया का जो रिफ्यूजी एक रिकॉर्ड रहा है दैट हैज बिन इम्पेकेबल, ठीक है। मॉरल ट्रेडिशन की अगर हम बात करें, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं हम, सो वी हैव बिन असिमिलेटिंग फॉरेन पीपल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड इंडिया में ऐसी परसिक्यूशन की प्रॉब्लम कभी हिस्टोरिकली भी आप देखो तो रही नहीं है। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिस ऑल्सो रिस्पेक्ट्स द लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 1966 में ये कहा था, while all the rights are available to citizens, persons including foreign citizens, they are entitled to the equal and right of equality and right to life amongst others, ठीक है। इंडिया का आर्ग्यूमेंट क्या है 1951 का कन्वेंशन साइन करने के लिए, जो मैंने आपको बताया, ये वायलेट करता है आपकी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स बट नॉट इकोनॉमिक राइट्स। अब अगर रिफ्यूजी, crores and crores of refugee, if for example they come and they start subsiding, residing in your territory, आप कोई काम करने के लिए फॉर एग्जाम्पल लाख रुपए चार्ज कर रहे हो, अगर एक रिफ्यूजी आके बिकॉज उसको पैसे की ज़रूरत है वो काम 1000 रुपए में कर देता है, तो
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको छोड़ के बाहर वालों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। सिमिलरली वहाँ पे टेंशन क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इकोनॉमिक राइट्स जो आपके रिसोर्सेज हैं ये वो यूटिलाइज करेंगे, आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम जो रिफ्यूजीज़ के साथ आती है। नाउ जो बेसिक डेफिनेशन है इमिग्रेंट और रिफ्यूजी की ना कोई अलग डेफिनेशन है नहीं। सो इंडिया के उसमें अगर आप केस में पर्टिकुलर केस में देखो, देयर हैव बीन इलीगल इमिग्रेंट्स इन इंडिया सिंस टाइम immemorial and this has been happening for a very long time. Illegal immigrants have come in India from the porous borders चारों तरफ से, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली अगर आप राजीव गांधी की असैसिनेशन का केस कंसिडर करो, तमिलियंस के केस में जो हुआ था, तो दैट इज द बर्निंग टॉपिक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सिमिलरली फ्रॉम अ पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, बहुत ज़्यादा हो गया, पास्ट 2 decades, पाकिस्तान की साइड से टेररिस्ट्स हैव बिन कमिंग अ लॉट in a big number disguised as persecuted people, ठीक है। so that is the facade they follow. तो इंडिया के लिए ट्रस्ट इश्यूज आना इट्स वेरी ऑब्वियस। नाउ इकोनॉमिक राइट्स का वायलेशन हो रहा है, पॉलिटिकल एंड ह्यूमन राइट्स हम की उनकी वायलेट नहीं कर रहे हैं। नाउ अगर हम पर्टिकुलरली साउथ एशियन कंटेक्स्ट की बात करें तो ये आर्ग्यूमेंट इंडिया के लिए बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे भी होल्ड करता है। नाउ चैलेंजेस इंडिया की रिफ्यूजी पॉलिसी के साथ क्या है? एज आई सेड, रिफ्यूजी वर्सेस इमिग्रेंट्स में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरा जो फ्रेमवर्क है इसमें एम्बिग्विटी बहुत है, बिकॉज द फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंडर हम दोनों को एक ही तरह से व्यू करते हैं। Also there is a particular clause of adhocism. Adhocism का मतलब क्या है? इंडिया कैन पिक एंड चूज रेफ्यूजीज अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल CAA के केस में इंडिया चोज टू एक्सक्लूड मुस्लिम्स बट इट चोज टू इंक्लूड हिंदू, सिख्स, जैन्स एंड पारसीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये एडोकिज्म का जो इशू है ये भी निकल के आता है। CAA हैज बिन डिस्क्रिमिनेटरी, हाउ इट हैज बिन डिस्क्रिमिनेटरी काफी डिटेल में डिस्कस हो चुका है, आप एक बार प्लीज इसको PDF में पढ़ लीजिएगा। राइट नाउ अगर आप बात करो रिफ्यूजीज की वर्ल्ड वाइड, इंडिया के पास रिफ्यूजी बर्डन है, बट देयर हैव बिन कंट्रीज, इवन द नॉर्डिक कंट्रीज, द बाल्टिक कंट्रीज हु हैव टेकन रिफ्यूजीज। एंड ऐसा नहीं है कि रिफ्यूजीज के आने से देयर हैव बिन just negative things that have happened to your country. Burning example is this lady. I hope you guys know who she is. If you don't, she is the shining example of what pressure can do to a person. So her name is Nadia Nadeem, and she was persecuted from Afghanistan. She was born in 1988. She's 34 years old right now. She was persecuted from Afghanistan. Her father was a general in Afghanistan's army who was killed by Taliban. Now, she, as a refugee, went to Denmark. Earlier, she thought she might be going to London, but they settled in Denmark. Now, she was the first naturalized citizen of Denmark who is an official member of the Denmark football team, right? 2016, 2017, she was both years consecutively, she was awarded as the player of the year, Denmark's player of the year. And 2018 Forbes के sports section में she was awarded as among the top 10 most influential women who have taken part in sports. Professionally अगर बात करो, she can speak 9 languages including Hindi, English, French, Urdu and etc etc. 9 languages. She's fluent in them. And this football thing she only plays only for it's a part-time thing for her. She is actually a medical student and she's a doctor in reconstructive surgery. So this is what refugees are made of. We should not be portraying them just in the negative limelight. There is a lot of potential in people.
India has always chosen to see good in people, but there have already been security issues involved. So ये वाले ध्यान को ये वाले टॉपिक को ध्यान में रखते हुए अपना आंसर लिखेंगे. दिस कंक्लूड्स योर रोहिंग्या टॉपिक फॉर टुडे. आई होप जितनी डिटेल्स है दोज आर क्लियर. PDF इस लेक्चर का विल बी शेयर्ड इन द टेलीग्राम ग्रुप just after the session. Please download it from there and write your answer. Form a balanced answer. बहुत ज़्यादा ना किसी भी extreme point पे नहीं जाना. Form a balanced answer. Keep all the points in view, and we'll meet again on Monday with your polity session. Till then, stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye bye.